The computer rebooted, previous recording got lost, so I'll have to restart again from the Greek invasion. So the dynasty ruling over North India at the time of Alexander's invasion. तो अलेक्जेंडर के समय नॉर्थ इंडिया में स्पेशली मगध इन एंड अराउंड मगध वाले इलाके में कौन रूल कर रहा था? नंदा डायनेस्टी थी, और उस नंद डायनेस्टी में भी कौन से रूलर था? सो इट वाज धनानंद. एंड अलेक्जेंडर वाज इंडिया फॉर नियरली 2 years and then he left in 325 BC. The women of Indian Republic or kingdom that have taken arms against Alexander after a large number of its soldiers had been killed or wounded in the battlefield, so that the name of the republic was Masagga. That republic was Masagga. The reasons of Alexander's success in India were there was no central power in India at that time, correct? He had a superior army, that is also correct, and he was helped by the traitorous Indian rulers, that is also correct. The brave Indian king whom Alexander defeated on the bank of river Jhelum, that is Porus, and the king. अच्छा, अब इसको मैच करो. सो डेमेट्रियस ये इंडो ग्रीक था, इंडो ग्रीक था. देन रुद्रदामन ही बिलोंग टू द शाका, एंड विमा कटफिसस ही बिलोंग टू कुशान, एंड गोंडोफर्निस ये यहाँ गलत लिखा हुआ है. गोंडोफर्निस बिलोंग टू द पार्थियंस. I'll mark that with a different color so that you know it is wrong here. So Gondopharnes was Parthians, ठीक है. And the other thing is that सबसे पहले आए थे तुम्हारे इंडो ग्रीक्स, उसके बाद शाकाज, उसके बाद पार्थियंस, और उसके बाद लास्ट में कुशान्स आए थे. So that is the sequence of the foreign incoming rulers. Then out of the given options, namely Nearchus, one Citricus, one सिक्रिटस एंड डिमाकस एंड अरिस्टोब्यूलस, इन चारों में से कौन से 3 अलेक्जेंडर्स के साथ आए थे 325 में? सो दे वर नियरकस, वन सिक्रिटस एंड अरिस्टोब्यूलस. वेर एज डिमाकस ये भी आया था बट अलेक्जेंडर के साथ नहीं आया था, ठीक है. सो डिमाकस डिड नॉट कम विद अलेक्जेंडर ड्यूरिंग द 324-25 के आसपास, ठीक है. हालांकि डिमाकस आया था during the rule of Bindusara, that is much later, ठीक है. Now moving to the Maurya Empire. So first Indian Empire was established by Chandragupta Maurya. Then out of the given dynasties, namely Gupta, Maurya, Vardhan and Kushan, which is the India's oldest dynasty? So Maurya is the oldest amongst these 4, and Chandragupta Maurya figures prominently in the book of Vishak Dutt written by Mudra Rakshas, ठीक है. Then out of the given names, William Jones, V. Smith, R.K. Mukherjee, D.R. Bhandarkar recognized Sandrocotus as Chandragupta Maurya. So that is, देखो Sandrocotus भी एक नाम दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को by the English writers, English historians, and one amongst such English writer who referred Chandragupta Maurya as Sandrocotus was William Jones, ठीक है. So he was William Jones. Then we have out of the given names Pliny, Justin, Strabo, Megasthenes, who mentions the meeting of Sandrocotus with Alexander. So Sandrocotus की मुलाकात अलेक्जेंडर से हुई थी, that is चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात अलेक्जेंडर से हुई थी. इसका जिक्र जस्टिन नामक लेखक ने किया है, ठीक है. Now Kautilya was prime minister of the Chandragupta Maurya, and Chanakya was known in his childhood as Vishnugupta, and the Arthashastra of Kautilya is based on statecraft and book on principles of government. According to Kautilya's अर्थशास्त्र, following is correct. अब ये कुछ बातें हैं जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में लिखी हैं. फर्स्ट, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट, उसको स्लेव बना सकते हैं. एंड सेकेंड, इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वॉज लीगली फ्री, ठीक है. इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वॉज लीगली फ्री. Now out of the given options, namely जनपद, दुर्ग, मित्र, कोश, इसमें से कौन सा सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य के 7वें चैप्टर में था? सो दैट वाज द मित्र, दैट इज अलायंस फॉर्मेशन. तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बेसिकली सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट बताया है, जिसमें 1 से लेकर 7 लिम्स ऑफ अ स्टेट बताया है. उसने डिस्क्राइब किया है कैसा होना चाहिए. उसमें जो 7वें नंबर पे है दैट इज अलाइज, जिसे मित्र बोल रहे हैं, ठीक है. देन कौटिल्य's अर्थशास्त्र डील्स with the aspects of political policies, that is correct. Then the text can be compared to the Prince of Machiavelli. अब कौटिल्य की अर्थशास्त्र is similar to the book written by Italian Machiavelli, जिसने किताब लिखी थी The Prince. Then Dimachus came to India during the rule of Bindusar, ठीक है. Bindusar was the first founder of Mauryan dynasty, और उसी के समय Dimachus आया था. Then Chandragupta
palace situated at Patliputra is mainly made up of woods. तो लकड़ी का बना हुआ है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का किला. Then the remains of ancient city which have been found at the कुमराहर site, तो वो पाटलिपुत्र में है. बुलंदी बाग भी पाटलिपुत्र में है. यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के ruins मिले हैं, पैलेसेस वगैरह मिले हैं. Out of the given rulers, namely Ashoka, Chandragupta, Bindusar and Kunal, who conquered the Deccan for the first time. तो चंद्रगुप्त for the first time conquered the entire Deccan, including the region like अब ये next point भी उसी से जुड़ा है, like मालवा गुजरात एंड सो डेक्कन मतलब क्या, मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र. ये तीन जगहें फॉर द फर्स्ट टाइम, बेसिकली दीज थ्री प्लेसेस कॉन्स्टिट्यूट द डेक्कन, एंड ये तीन जगहें फॉर द फर्स्ट टाइम वर कैप्चर्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, सो दैट इज़ दैट. नाउ द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्ता's sway over western India, that is given in Junagadh rock inscription of Rudradaman. The Gujarat was included in the kingdom of Chandragupta Maurya is proved by Junagadh rock inscription of the Rudradaman. अब रुद्रदामन के बारे में बता चुके हैं, शाका डायनेस्टी के थे. द इंडियन किंग हु डिफीटेड सेल्यूकस was the administrator of Alexander in the region of Sindh and Afghanistan, and Seleucus suffered defeat from the hands of Chandragupta Maurya, and Chandragupta Maurya defeated Seleucus in 305 BC. Then the correct match, अब देखो ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस क्वेश्चन है बिकॉज इट इज़ अबाउट गुप्ता डायनेस्टी नॉट मौर्य डायनेस्टी. तो गुप्ता डायनेस्टी के समय कुछ रीजनल पावर्स काफ़ी पावरफुल हो गई थी. उनमें से कुछ 4 नाम लिखे हुए हैं और उनके रीजन्स लिखे हुए हैं. तो उग्रसेन याद रखना और विष्णु गोपा, ये दोनों तो हमेशा याद रखना, भले बाकी दो भूल जाना. तो उग्रसेन बिलोंग टू द रीजन ऑफ पालका और पालक, एंड विष्णु गोपा बिकेम रीजनल इंडिपेंडेंट पावर इन कांची. बाकी धनाजाय याद रहे तो ठीक है. नीला राजा ये पावरफुल हो गया था अवमुक्ता नामक जगह पे. तो ये 3 याद रख सकते हो, ठीक है. द किंग हु एस्टैब्लिश्ड राजधर्म. सो राजधर्म इज जस्ट लाइक सुलही कुल जो अकबर ने निकाला था, वैसे ही राजधर्म निकाला था किसने, अशोका ने, विच वॉज बेस्ड ऑन लॉन्गैनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन. सो इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय अशोका. Out of the given territories, namely Afghanistan, Bihar, Sri Lanka and Kalinga, which was not part of the Ashoka's empire, तो श्रीलंका तो नहीं था. Out of the given inscriptions of Ashoka, namely 3rd major rock edict, 2nd major rock edict, 9th major rock edict and the first pillar inscription which mention the description of Sat. तो ये 13वें में दिया है, कहाँ गया, सॉरी 13वां एज वेल एज सेकेंड, दोनों में. सेकेंड में क्या दिया है, सदर्न किंगडम्स के बारे में किस में दिया है, सेकेंड एज वेल एज 13th मेजर रॉक एडिक्ट्स में दिया है अशोका के. तो यहाँ पे सेकंड था, इसलिए हमने ये सेकंड को मार्क किया है. इंडियाज़ फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स वर बिल्ट बाय अशोका. तो हॉस्पिटल्स एज वेल एज हर्बल गार्डन्स पहले किसने बनवाया था इंडिया में, अशोका ने. इन स्पाइट ऑफ बीइंग बुद्धिस्ट, अशोका डिड नॉट लीव बिलीफ इन हिंदुइज्म. वैलिडेशन ऑफ दिस फैक्ट इज गिवन इन एपिथेट जो वो धारण किया था, देवनम प्रिया. सो डिस्पाइट हिज रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द बुद्धिज्म, ही स्टिल मेंटेन्ड द हिंदुइज्म बिलीफ सिस्टम्स. एंड ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हॉस्टाइल हो गया हिंदू के विरुद्ध और बिल्कुल ही एक तरफ से अपना लिया बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म को भी साथ ही में प्रमोट किया. एंड दैट इज़ that is validated as well as evident from the fact that he adopted the epithet of Devanam Priya. The sources that mention the occurrence of Third Buddhist Council during the reign of Ashoka, अब देखो दीपवंश और महावंश, ये दीपवंश और महावंश क्या बताते हैं कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका और पाटलिपुत्र में हुई थी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोगालीपुत्र टिस्सा. सो ये सारी बातें तुम्हें दीपवंश और महावंश से पता चलती हैं. तो दीपवंश और महावंश से थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई अशोका के रूल में ये पता चलता है. अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्र एंड द मॉडर्न रूलर्स हु वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म. Now this is quite strange that in the entire line of rulers of Mauryan dynasty, only Ashoka and Dashrath adopted Buddhism. Ashoka and Dashrath. Then Rajukas, they were the officers in the Mauryan administration, revenue and administrative officers. Then Sarthavaha were convoy of merchants during the Mauryan rule. Then out of the given officials, namely Agraharika, Yukta, Pradeshika and Rajuka, which was not a part of the Mauryan kingdom. अब ये अग्रहारिका नहीं था. Agraharika was not part of the Mauryan administrative setup. Baki Yukta, Pradeshika and Rajuka, they were all the name of the positions held by the officers in the Mauryan administration.
देन सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय, अब ये बहुत अच्छा सवाल है, सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय अशोका, ठीक है, सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय अशोका. देन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली अमरावती, बहरुत, भरूत, सांची, सारनाथ, विच इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्तूपा. अब ये कैसा पटांग सवाल है, अमरावती में भी स्तूपा है, भरूत में भी है, सांची में भी है, सारनाथ में भी है. तो सांची वाला जो स्तूपा है दैट इज़ द बेस्ट स्तूपा एंड इट वॉज बिल्ट बाय, कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका. जस्ट सिमिलर टू सारनाथ पिलर जो था, ये कहाँ गया, सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय अशोका. सिमिलरली सांची स्तूपा वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय अशोका. द करेक्टली मैच्ड लिस्ट आर कौशाम्बी, कौशाम्बी में एक घोषित राम मोनास्ट्री है, कुशीनगर में रामाभार स्तूपा है, और सारनाथ में धामेक स्तूपा है, और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूपा है. ये सब जैन और बुद्धिज़्म से जुड़े स्तूपाज हैं. तो फिर से बता दे रहे हैं, घोषित राम मोनास्ट्री कौशाम्बी में है, श्रावस्ती में सहेत महेत है, और सारनाथ में धामेक है, और कुशीनगर में रामाभर स्तूपा है. All these are related to Buddhism and Jainism. In the course of pilgrimage, Emperor Ashoka visited places and followed the route. अब अशोका ने कौन कौन मतलब पिलग्रिमेज साइट्स की अगर बात करें तो उसमें क्या सीक्वेंस था फॉलोड बाय अशोक, तो इसका निमोनिक बनाना पड़ेगा. सो इन ऑल देर आर 6 प्लेसेस विजिटेड सीक्वेंशली बाय अशोका. तो इसमें सबसे पहले है लुम्बिनी, फिर कपिलावस्तु, फिर बोधगया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, और फिर श्रावस्ती. नाउ लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज प्राकृत, ठीक है. देन आउट ऑफ द गिवन अशोकन इंस्क्रिप्शंस विच खलसी नहीं होगा, या कालसी है, के ए है, कलसी, गिरनार, शबासगढ़ी, मेरठ, विच इज़ एन खरोष्टी स्क्रिप्ट. तो खरोष्टी में वही होएगा जो नॉर्थ वेस्टर्न के पास होगा, सो शबासगढ़ी वाला हो जाएगा, ठीक है. देन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वॉज इन द लैंग्वेज ऑफ प्राकृत. अब चूँकि ये अर्लीस्ट डायनेस्टी है इंडिया की, तो प्राकृत हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर मोस्टली रिटन इन प्राकृत एक्सेप्ट द वंस दैट वर इन द फ्रंटियर provinces where they were written in Kharoshti and Aramaic. Out of the given scripts of India, namely Brahmi, Sharda, Kharoshti and Nand Nagari, which was written from right to left. तो right to left खरोष्टी स्क्रिप्ट की एक खासियत है कि अब देखो ब्राह्मी ले लो, चाहो शारदा ले लो, खरोष्टी, नंदा नगरी, इसमें से सिर्फ खरोष्टी ऐसी है जो कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है पन्ने पेज पे, ठीक है. द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डेसिफर्ड, स्टोन टैबलेट्स पे सबसे पहले डेसिफर किया गया था, सबसे पहले लिखा भी गया था स्टोन टैबलेट्स पे. पेपर का कॉन्सेप्ट उतना नहीं था उस समय. सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत स्क्रिप्ट, मोस्टली प्राकृत एज वेल एज ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स से जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे उस समय वो पत्थर पे लिखे जाते थे. सो द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डेसिफर्ड बाय द लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स. द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट्स, पहले ऐसे स्कॉलर कौन थे, सो जेम्स प्रिंसेप थे जो अशोकन एडिक्ट्स को पढ़े थे, डेसिफर किए थे. प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फाउंड इन अनुराधपुरा. अब ये थोड़ा सा स्ट्रेंज सवाल हो जाता है, इसलिए इसको हम डिफरेंट कलर से कर दे रहे हैं. सो अशोकन रूल से भी पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिली थी, वो कहाँ मिली थी, अशोकन रूल से भी पहले कोई ब्राह्मी स्क्रिप्ट अगर मिली थी तो वो अनुराधपुरा नामक जगह पे मिली थी, अनुराधपुरा. प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. द नेम बाय विच अशोका इज रिफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज प्रियदर्शी. The name by which Ashoka is referred to in his inscription. Then out of the given kings, namely Chandragupta Maurya, Ashoka, Samudragupta, Harshvardhan, who has been mentioned as Piyadasi and Devanam Priya, so definitely Ashoka को ही ये नाम से पुकारा जा रहा था, देवनम प्रिया और पियादसी से. The true statements regarding Ashokan stone pillars are, these are highly polished. तो अब जो ये पिलर्स गड़वाए थे अशोका ने, एक तो ये मोनोलिथिक थे, दूसरी शाफ्ट जो था वो टेपरिंग था शेप में. टेपरिंग मतलब एक जगह रेडियस ज़्यादा था और दूसरी तरफ जाते जाते रेडियस घटता चला गया था. सो द शाफ्ट ऑफ द पिलर वॉज टेपरिंग इन शेप, ठीक है, तो दैट इज मेंट बाय टेपरिंग इन शेप. तो दे वर हाईली पॉलिश्ड, दे वर मोनोलिथिक एंड द शाफ्ट ऑफ द पिलर्स वर टेपरिंग ग्रेजुअली, ठीक है. तो ये तीनों पॉइंट्स याद कर लो. द ट्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर्स, अशोकन स्टोन पिलर्स ये है, ठीक है. फिर out of the given edicts, namely Kalsi, Rumandi, Special Kalinga Edict and Maski, which mentions personal name of. तो देखो personal name of अशोका केवल कुछ ही जगह लिखा हुआ है, and that is उसमें से I think personal name of Ashoka is written only in few edicts. उसमें से कालसी है एक,
नहीं कालसी नहीं है, मस्की है, मस्की, ठीक है। तो ये याद रखो, मस्की। नाउ आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शंस नेमली गुजरा, अहरौरा, ब्रह्मगिरी, सारनाथ विच कंटेन द नेम ऑफ अशोका। तो ये गुजरा है, गुजरा एज वेल एज मस्की, ठीक है। तो जीएम याद कर लो, दो जगह आपको अशोका का पर्सनल नेम लिखा हुआ मिल जाएगा, एक गुर्जरा में और एक मस्की में। तो जीएम कर लो, जीएम। नाउ रिमेंडी पिलर ऑफ अशोका वाज पुट अप टू मार्क द बर्थ ऑफ बुद्धा। तो रिमेंडी पिलर की क्या सिग्निफाई करता है? द बर्थ ऑफ बुद्धा। नाउ आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंटर वेयर द सीक्वेंस ऑफ अशोका विजिट्स टू पिलग्रिमेज साइट्स था। तो इट स्टार्टेड विद लुम्बिनी एंड कपिलावस्तु, ठीक है, दो दो करके याद करो। तो लुम्बिनी और कपिलवस्तु पहले दो हैं, फिर बोधगया और सारनाथ, बोधगया और सारनाथ, और फिर कुशीनगर और श्रावस्ती, ठीक है। तो फिर से बता रहे हैं, देखो लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोधगया, सारनाथ, और फिर कुशीनगर और श्रावस्ती। बस ये याद रख लो कि लुम्बिनी पहला था और श्रावस्ती लास्ट में था, ठीक है। फिर से एक बार बता रहे हैं, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, फिर लास्ट में श्रावस्ती है, लेकिन एक सेकंड लास्ट था, वो क्या था? कुशीनगर। तो ये हो गया। फिर दो जगह उनके पर्सनल नाम लिखा है अशोका का, दैट इज़ गुर्जरा एज वेल एज मस्की। नाउ मंडसोर इंस्क्रिप्शन ये कुमारगुप्त से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुमारगुप्त ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लेटर रूलर्स ऑफ मौर्य डायनेस्टी। नहीं, नॉट मौर्य, गुप्ता, ठीक है। मंडसोर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू कुमारगुप्त। देन तक्षशिला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू शाका रूलर पटिका, ठीक है। तक्षशिला कॉपर प्लेट, अब ये थोड़ा सा नया है। तो ये तक्षशिला में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला था। यहाँ पे एक शाका रूलर के बारे में पता चलता है जिसका नाम था पटिका, ठीक है, पाटिका। तो दैट इज़ तक्षशिला। देन ईरान इंस्क्रिप्शन, तो ये समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है, ईरान इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना, मंडसोर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू कुमारगुप्त, मंडसोर इंस्क्रिप्शन एंड ईरान, ERAN। मेरे ख्याल से यही यहाँ पे सती के भी बारे में लिखा हुआ है ईरान इंस्क्रिप्शन में। सो ईरान इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू समुद्रगुप्त एंड तक्षशिला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू शाका रूलर पटिका। देन द गुजरा माइनर एडिक्ट इन विच द नेम ऑफ अशोका इज मैंशनड इज लोकेटेड। अब जो मैंने ऊपर दो बताए थे जहाँ पे पर्सनल नेम्स ऑफ अशोका लिखा है, एक गुर्जरा और एक मस्की, तो उसमें जो गुर्जरा माइनर एडिक्ट है वो कौन से राज्य में है? तो दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ मगध, तो ये भबरू पिलर इंस्क्रिप्शन में है। अशोका हैज़ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध इन द भबरू पिलर इंस्क्रिप्शन। अब कालसी क्यों फेमस है? बिकॉज वहाँ पे रॉक एडिक्ट है अशोका का, और ये उत्तराखंड में है। तो द प्लेस इन उत्तराखंड वेयर copy of Emperor Ashoka's rock edicts has been discovered, so that is Kalsi in Dehradun district of Uttarakhand. Then out of the given relief sculpture inscriptions, namely Kanganahalli, Sanchi, Shabasgadi and Sohagura, in which Ranyo Ashoka or King Ashoka is mentioned along with a stone portrait of Ashoka. तो ये कंगनाहल्ली में है। अब देखो रैनियो अशोका कहाँ पे लिखा हुआ मिला है? एक पत्थर पे, और एक फ़ोटो भी हल्का सा बना रखी है पोर्ट्रेट पे, स्टोन पे, अशोका की फ़ोटो, और रैनियो अशोका ये कहाँ मिला है? ये कंगनाहल्ली में मिला है। ये भी मुझे नहीं पता था। आई विल मार्क दैट विद द कलर ग्रीन। तो दो हो गया ग्रीन से। एक अनुराधपुरा, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस ऑफ प्री अशोकन टाइम्स वर डिस्कवर्ड इन अनुराधपुरा, और एक ये कंगनाहल्ली हो गया जहाँ पे अशोका का एक मिनिएचर पोर्ट्रेट स्टोन पे एनग्रेव्ड मिला है, साथ में उसका नाम लिखा है रैनियो अशोका। सो दैट इज़ फाउंड इन कंगनाहल्ली। एंड आई थिंक कंगनाहल्ली, अब देख लेना कौन से राज्य में है, आज पड़ता है। देन अशोकन रॉक एडिक्ट दैट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा वॉर, सो दैट इज़ 13th। एंड द अकाउंट्स ऑफ कलिंगा वॉर, ये सब 13वें में लिखा है एडिक्ट में। द अशोकन इंस्क्रिप्शन दैट इज़ डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, तो ये 12वें में लिखा है, ठीक है। तो देखो 13वें में कलिंगा है, उससे ठीक एक पहले वाले में रिलीजियस टॉलरेंस लिखा है। देन अशोका स्पीक्स ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस, अगेन रॉक एडिक्ट 12 में लिखा है ये। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली अशोका, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन एंड कृष्णदेव राय, हु एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, whosoever praises his religious sect or blames other sect out of the excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures own very severely. So ये अशोका ने लिखवाया था अपने इंस्क्रिप्शंस पे, रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा देने के लिए। अब इधर थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। सो इन मॉडर्न पीरियड टैक्स इवेजन वॉज पनिश्ड विद डेथ, ठीक है।
कलिंगा के बारे में बताया, रॉक एडिक्ट 13 में लिखा है। एंड द मौर्यन किंग्स डिड नॉट बेस्टाउ लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस। ये मौर्य के समय तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुआ था कि रिलीजियस बेसिस, धर्म के बेसिस पे लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे हैं। ये मौर्य के समय नहीं हुआ था। नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट इज Ashoka annexed Kalinga to the Mauryan Empire. Kalinga controlled the land and sea routes to South India. Of course, yes. Then the ancient Indian records, that is the earliest royal order to preserve food grains. तो फूड ग्रेन्स जहाँ प्रिजर्वेशन की बात आई तो सोहा गुरुआ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हम जानते हैं। रूलर ऑफ द गिवन डायनेस्टी नेमली चोला, Gupta, Maurya and Pallavas, which had diplomatic relations with distant countries like Syria and Egypt. सीरिया और इजिप्ट से तो मौर्य डायनेस्टी का ज़्यादा रिलेशन था। देन तुर्माया, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका, वॉज द रूलर ऑफ इजिप्ट। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तुर्माया ऑफ इजिप्ट थे, अनिकीनी ऑफ आई थिंक मैसिडोनिया और तुर्माया ऑफ इजिप्ट, और 2 लोग और थे। ठीक है, तो देख लेना, वो घटना चक्र के नोट्स में है। तो तुर्माया ऑफ इजिप्ट वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका। देन टोलेमी फिलाडेल्फस, हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अशोका, वॉज किंग ऑफ इजिप्ट। तो ये भी थे, तुर्माया के साथ साथ टोलेमी और फिलाडेल्फस, ये दोनों भी इजिप्ट के किंग थे, कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका थे। नाउ आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, नेमली पिलर एडिक्ट 1, रॉक एडिक्ट 1, पिलर एडिक्ट 5, रॉक एडिक्ट 9, रॉक एडिक्ट 11, विच बैन्स एनिमल सेक्रीफाइस ऑन सर्टेन फेस्टिव गैदरिंग्स। तो ये पिलर एडिक्ट 5 करता है। पिलर एडिक्ट 5 बैन्स एनिमल किलिंग्स। The central point in Ashoka's Dhama is policy of peace, non-violence and religion. The central point in Ashoka's Dhama is policy of peace, non-violence and religious tolerance. Policy of peace, non-violence and religious toleration. ये central है अशोका धामा में। The Ashokan major rock edict which tells about the Sangam kingdom. Sangam kingdom ये वही है, सदर्न किंगडम के बारे में बात हो रही है। तो सेकेंड एज वेल एज 13th रॉक एडिक्ट से दोनों से ही पता चलता है सदर्न किंगडम्स के बारे में। और साइट ऑफ अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट्स, तो धौली उड़ीसा में है, एरागुर्दी आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ उड़ीसा में है, कलसी उत्तराखंड में है। ठीक है, जौगढ़ भी उड़ीसा में है और धौली ये भी उड़ीसा में है। देन आउट ऑफ द गिवन साउथ इंडियन किंगडम्स, नेमली चोला, पांड्या, सत्यपुट एंड सातवाहन, विच इज़ नॉट मैंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो सातवाहन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है अशोकन इंस्क्रिप्शन में, नॉट मैंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, सो दैट इज सातवाहन। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, नेमली पिलर, हाँ तो ये बता चुके हैं। एनिमल किलिंग को प्रोहिबिट किस पिलर एडिक्ट में किया है? पिलर एडिक्ट 5 में किया है। एनिमल किलिंग इज प्रोहिबिटेड एज पर पिलर एडिक्ट 5 एंड सातवाहन वॉज नेवर मैंशनड इन एनी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। और धौली भी उड़ीसा में है और जौगढ़ भी उड़ीसा में है, एरागुर्दी आंध्र प्रदेश में है और कलसी उत्तराखंड में है। एंड संगम किंगडम के बारे में 2nd and 13 रॉक एडिक्ट से पता चलता है। और अशोका का धामा, दैट इज पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन वायलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस होता है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे देखते हैं। फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के कोर्ट में आए थे। एंड मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस। और मेगास्थनीज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इंटू 7 कैटेगरीज। The sources that state that there was no slavery in the ancient India, that is as per Megasthenes Indica. The division of Mauryan society into 7 classes particularly mentioned in Megasthenes Indica, and the description of the administration of Patliputra, particularly Patliputra का administration खास तौर पे इंडिका में दिया गया है अलग से। And the source that gives a detailed account of city administration of the Mauryas, that is Megasthenes Indica. और Indica was originally written by Megasthenes. The true statement regarding Patliputra, the capital of Magadha kingdom, is Patliputra was surrounded by the rivers of Ganges in the north and by the river Son in the west. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम पाटलिपुत्र की बात करें, which was the capital of Magadha kingdom during Mauryan rule, तो उसमें 2 नदियाँ थीं। एक तो नॉर्थ में गंगा थी और वेस्ट में सोन थी, सोन। ठीक है, नाउ हरिसेन वॉज द फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्त कोर्ट, ये हमको पता है। ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और एक और देख लो, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न किंग इज दे डेवलप्ड कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, प्रोविंशियल डिवीजन, किंगशिप टू हिंदू कुश। अच्छा, तो कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर तो डेवलप किए ही, और प्रोविंशियल डिवीजन भी किए, और किंगशिप टू हिंदू कुश, ये पॉइंट रट लो। किंगशिप टू हिंदू कुश रिकग्नाइज किए थे।
किंगशिप टू हिंदू कुश कौन रिकग्नाइज किया था? मॉडर्न किंग्स रिकग्नाइज किए थे. देन भाग एंड बाली, दे वर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स. भाग एज वेल एज बाली. लैंड रेवेन्यू विच वॉज द चीफ सोर्स of income during modern was collected by the officer सीताध्यक्ष. तो लैंड रेवेन्यू सीताध्यक्ष के अंतर्गत आ रहा था. सीताध्यक्ष. द ऑफिशियल अग्रोनोमाई ड्यूरिंग मॉडर्न एजेस was related to the field of construction of roads. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको हम रेड मार्क कर दे रहे हैं. अग्रोनोमाई ये यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है. तो सीताध्यक्ष और अग्रोनोमाई ये दोनों देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में करेंगे. तो सीताध्यक्ष कौन था ड्यूरिंग द मॉडर्न रूल, एज वेल एज अग्रोनोमाई कौन था? ठीक है, तो ये देख लेते हैं. खुल क्यों नहीं रहा है? सो हु वर ड्यूरिंग मौर्यास. सो सीताध्यक्ष was the officer in charge of agriculture and agronomy was an official responsible for agricultural planning and forestry management. अब ये AI बोल रहा है. सीताध्यक्ष was the officer in charge of agriculture. ठीक है, सीताध्यक्ष. अब ये देख लो, क्वेश्चन ही देख लो. अंडर द मॉडर्न रूल सीताध्यक्ष was the officer in charge of agriculture. ठीक है, तो अरे यार, ठीक है, तो ये हो गया. सीताध्यक्ष was the in charge of agriculture. और अग्रोनोमाई देख लो कौन है. अग्रोनोमाई को क्या बता रहे हैं? अग्रोनोमाई was responsible for agriculture planning and forestry management, ensuring the sustainable use of natural resources. ठीक है, ये बताया गया है. एक बार और देख लो, अग्रोनोमाई. अब ये कौन थे मौर्यन एम्पायर में? डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ टास्क्स इंक्लूडिंग रेवेन्यू कलेक्शन भी करते थे, सुपरवाइजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. तो इसमें कई इनके टास्क थे, जिसमें से सबसे प्राइमरी था रेवेन्यू कलेक्शन. रोड भी बनवाना था, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री प्लानिंग भी करना था, एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी करना था, इरिगेशन भी करना था. ठीक है, तो ये हो गया.